So what is happening basically in liquefaction of the gas? Now you tell me guys, there is attraction, right, between the molecules. If you will keep on compressing them, there will be a stage that will come where they are so close that they will prefer to combine with each other and try to form a liquid also. Yani basically I'm trying to tell you, a stage will come where liquid and vapor both will coexist. And this is that stage, guys. यही है वो liquid and vapor equilibria. Initially what was happening when you were compressing them, it was coming down and down and down, but एक level के बाद when they are close enough, तो ये combine करके बेटा liquid बनाते हैं. More, if you are more pressing, then combine करके liquid बनाते हैं. And इसके ये side में बेटा, ये side में ये pure liquid है, और इधर side में बच्चों ये vapor है. So this side it is vapor, in this region it is अब मैं उस रीजन को कलर कर दे रहा हूं पूरा. ये बेटा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का रीजन है, ये पूरा का पूरा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है. और जो भी इस पोर्शन को टच कर लिया उसके लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब ये पूरा पोर्शन, ये सब के सब कौन से हैं बेटा, ये प्योर लिक्विड वाले रीजन है. और जो इस रीजन को टच ही नहीं किया वो कभी लिक्विड बना ही नहीं है, ये सब ये गैस है. देख रहे हो मैं बड़ा स्मूथली लिख रहा हूँ बेटा उसको गैस. अभी इधर मैंने वेपर लिखा था, इधर गैस नहीं लिखा था, अभी इधर मैं गैस कर रहा हूँ. तो ये जो टेम्परेचर है ना, यही हमारा लिमिटिंग टेम्परेचर है. इसका मतलब है कि सर if you increase the temperature after a certain limit, you cannot liquefy no matter how much pressure you are applying. So that limiting value of the temperature up to which we can do, that is known as critical temperature. What we can do? Liquefy the gas. तो ये liquid है पूरा. Critical तक में liquid होता है, लेकिन उसके बाद कोई chance नहीं है. So what is a critical temperature? समझ में आया ना? Pressure in between at lower temperature. At lower temperature, pressure is pressure in between is getting constant due to liquid vapor equilibrium. Next, what is critical temperature? What is critical temperature? How will you define it? बच्चों आवाज आ रही सबको? Sir, yes. So it is the maximum temperature up to which vapor can be liquefied. लेकिन ऐसे ही हो जाएगा क्या लिक्विड? नो, बाय अप्लाइंग required amount of pressure. By applying a required amount of pressure. तो आता है
temperature above which we cannot liquefy. Temperature above which we cannot liquefy. What we can't liquefy? We cannot liquefy the vapor. और एक important बात है बच्चों, and that is कभी भी आप you cannot claim a molecule to be gas unless the temperature is above critical temperature. So कभी कभी लोग पूछते हैं what is the difference between vapor and gas? Vapor and gas are differentiated by temperature. Above Tc, gas behavior means it can't be liquefied. Below Tc या temperature less than or equal to Tc, कौन बनेगा बेटा? Vapor. तो बड़ा सिंपल है बेटा, टीसी के ऊपर ये, टीसी के नीचे। अब ये वैल्यूज कैसे निकालोगे बच्चों? हाउ विल यू फिगर आउट द वैल्यू? तो आप देखो, ये पॉइंट अगर आप देखने की कोशिश करो, तो अगर आप मैथमेटिकली देखो तो टीसी पे ऐसा अचानक से एक इन्फ्लेक्शन आ रहा है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन था। तो ये बच्चों ग्राफ किसका था? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो जब भी बेटा क्रिटिकल कंडीशन, और ये क्या है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैथमेटिकल लैंग्वेज में। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी भी हो, dp बाई dv का वैल्यू 0 होता है, एंड सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 होता है, d2p अपॉन dv2। सो ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट पे ये। अब जब आप इनका यूज करोगे, और इक्वेशन आपके पास मैंने बता ही दिया है, राइट? तो आप अगर वहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, बड़ी जो टीसी का वैल्यू है वो 8a अपॉन 27 आरबी आता है। आई विल टेल यू लेटर ऑन कि और एक मेथड है बाय विच वी कैन कैलकुलेट। अगर बेटा यहाँ पे टीसी है, तो वैसे भी ये टीसी था, तो ये जो पर्टिकुलर प्रेशर है बेटा वो पीसी है, और ये जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वो वीसी है। तो वीसी का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ बी आता है। आपको ऑलरेडी बी मालूम है कितना, 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन है।
ये यूज कर सकते हो। और एक और रिलेशन है बड़ा सिंपल सा, PCVC अपॉन RTC, यानी Z एट क्रिटिकल कंडीशन। अच्छा बताओ, क्रिटिकल कंडीशन में भी गैस तो लिक्विड बन रहा है ना, आई मीन वेपर तो लिक्विड बन रहा है ना। सर यस। हाँ तो बेटा ये Z का वैल्यू आता है 3/8, Z less than 1. If you will remember this, it is certainly going to help you. ये वैल्यू याद रखो। निकालना कैसे है, तो एक तो जो मैंने अभी तरीका बताया उससे आप निकाल सकते हो, और एक अभी बताऊंगा उससे भी आप निकाल सकते हो। राइट। अब और एक तरीका क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी आपको अगर पूछे कोई पीसी नहीं बता पाओगे क्या, क्रिटिकल प्रेशर, तो आपको मालूम है VC इज 3B, R इंटू TC इज 8A। तो आप देखो R से बेटा R कैंसिल हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, PC का वैल्यू कितना आ गया, A अपॉन 27 B स्क्वायर। ये सुनो, सर यस। ये आंसर, राइट। सो PC इज इक्वल टू A अपॉन 27R। अब ये डिफाइन PC अब मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दी। व्हाट इज VC, पहले PC देख लो, PC कैसे डिफाइन होता है। सिंपल, द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट क्रिटिकल condition by 1 mole of real gas। सिमिलरली बच्चों VC को क्या बोलते हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम occupied by 1 mole of real gas at critical condition, critical temperature and pressure। ठीक है, ऑल राइट एवरीबॉडी। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये वैल्यूज आप कैसे निकाल सकते हो, ये वैल्यूज आप निकाल कैसे सकते हो, जो अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको कैसे निकाल। बच्चों आपने ये पढ़ा हुआ है, बोलिए। मैं एक हिंट दूंगा आपसे निकल जाएगा। ये बताओ बच्चों, जो वायरल इक्वेशन था, सॉरी जो रियल गैस इक्वेशन है, यानी ये रियल गैस इक्वेशन, अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि वन साइड करके सारा चीज देख लो बेटा,
v को एक ही साइड ला दो, तो दैट विल बी, या तो आप एक काम करो v से मल्टीप्लाई कर दो सब तरफ, तो पी वी स्क्वायर माइनस ए v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी इंटू वी स्क्वायर। अब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये जीरो। तो क्या दिख रहा है ये क्यूबिक इक्वेशन? आप देखो यहाँ वी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ वी का, बोलिए। तो जब ये मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, वी क्यूब हो जाएगा ना बेटा, ये सर नो, वी क्यूब। तो अगर आप बच्चों क्यूबिक इक्वेशन कर लिए, मैं बस हिंट दूंगा, बाकी आप लोग खुद से समझदार हो, ए एक्स क्यूब प्लस सपोज बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स हो, और मैं ये बोल दूं बेटा, ये देख रहे हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू जीरो हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा बोल सकता हूँ कि सारा जो 3 रूट्स है वो तीनों कॉन्साइड कर गया है? तो इसका मतलब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v माइनस वी सी का होल क्यूब a टाइम्स। अब अगर दोनों साइड में आप करने की कोशिश करोगे बच्चों, एक्सपैंड करोगे इस पूरे को, सी एक्स प्लस डी भी मुझे रखना है यहाँ पे, सॉरी कांस्टेंट भी होगा ना, इसको पूरा एक्सपैंड करो, और ये क्यूबिक इक्वेशन जो हमने यहाँ से लाया है इसको लेफ्ट साइड में करो, और कोफिशिएंट कंपेयर करो, वी क्यूब का दोनों साइड, फिर वी स्क्वायर का दोनों साइड, फिर v का on both the sides and constant term. You compare, you will get a 3 to 4 different relation between everything, PC, VC, RTC. जैसे मैं पूछूंगा what is P at the critical condition, P will become PC, T will become TC, and volume will become VC. Are you getting my point? So अगर आप करोगे तो you will get VC also and you will get PC also, you will get TC also. ये थोड़ा सा है बेटा, इसको थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन करोगे तो आ जाएगा, जिनको भी मैथ्स आता है वो कर सकते हैं, मैंने हिंट दे दिया आपको, राइट। सो ये क्रिटिकल कंडीशन हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ नहीं यार, एक इक्वेशन है वायरियल इक्वेशन। ये वायरियल इक्वेशन क्या, मैंने जैसा बताया कि जैसा आपका वॉन डेर वाल इक्वेशन रियल गैस बिहेवियर को बताता है, वैसे वायरियल इक्वेशन भी आपका रियल गैस बिहेवियर के बारे में। I told you what are the meanings of this whole critical temperature, critical pressure, कैसे ये सारा लिक्विड बनता है, ये सारा मैंने बता दिया आपको। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू there is one other equation which is known as Virial equation, right, which is known as Virial equation, जो कि बिल्कुल सिमिलर है, कैसा, जैसा हमारा वॉन डेर वाल इक्वेशन है उसके जैसा ही है, बट एज पर द Virial equation C by V cube plus dot 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 up to infinity. As per Virial equation, the compressibility factor Z can be given like this. तो अब अगर आप कंपेयर करना चाहते हो बच्चों, इसको कंपेयर करना चाहते हो, ऐसे कभी कभी पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, Virial equation along with Van der Waal, and try to compare the coefficient A and A coefficient के बारे में कुछ बताओ, तो कैसे कंपेयर करोगे, हाउ विल यू कंपेयर गाइस, how will you compare about the, what will be the value of A? So पहली बात बच्चों, at very low pressure, when this V is so much, I mean very very large, V बहुत ज्यादा होगा, तो ये सारे टर्म क्या होंगे बेटा, टेंडिंग टू जीरो ही होंगे, only we have to consider till here, yes or no? सर यस। तो अब कैसे कंसिडर करें बच्चों, इसकी वैल्यूज को कैसे मैच कराएं, तो देखते हैं, आ जाओ, लेट्स सी। वॉन डेर वाल इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं, एंड देयर आफ्टर विल ट्राई टू मैच। So Van der Waal equation was P plus A by V square, V minus B is equal to RT. Let's do some changes over here.
I want to extract just like Z. तो जब आप V को कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो PV प्लस A अपॉन V, दिस विल बी 1 माइनस B बाई V. RT को डिवाइड कर दो बेटा लेफ्ट साइड में लाके, PV अपॉन RT प्लस A अपॉन V RT, दैट विल बी इक्वल टू, अब 1 माइनस B बाई V को राइट कर दिया. बच्चों आपने ये एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि 1 माइनस B बाई V माइनस 1. आपने कुछ बाइनोमियल थ्योरम अगर जिसने भी पढ़ा है तो 1 माइनस B बाई V टू द पावर माइनस 1 का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है 1 प्लस B बाई V प्लस B स्क्वायर बाई V स्क्वायर प्लस B क्यूब बाई V क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट. लेकिन ये तभी होता है बच्चों व्हेन B बाई V इज क्वाइट लेस देन. ठीक ठाक अगर 1 से छोटा हो तो ये एक्सप्रेशन आएगा, नहीं तो अगर आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़े हो तो आपको तब भी मालूम होगा. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ. एंड दिस विल बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल व्हेन Vm is large or pressure is low. Now guys, now if I have to compare, so what I will do, so PV upon RT plus A upon VRT will be equal to 1 plus B by V. अब देखो बेटा, PV by RT को ही हम क्या बोल रहे हैं, Z बोल रहे हैं. I'll keep this Z plus A by VRT is equal to 1 plus B by V. राइट साइड लेके जाओ तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई V कॉमन निकाल लो तो क्या आ गया, B माइनस A अपॉन RT. क्लियर हुआ बच्चों? सो व्हाट इज द वायरियल कोफिशिएंट? व्हाट इज दिस वायरियल कोफिशिएंट? दिस इज ऑन माय वायरियल कोफिशिएंट A इज इक्वल टू, कंपेयरिंग दिस विद वायरियल इक्वेशन, the coefficient of 1 by V with Virial equation. So B minus A by RT का वैल्यू क्या आ गया? और B का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो वहां पे आप देखो, यहाँ पे V स्क्वायर का टर्म है, तो V स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कंपेयर करो. आ रहा है बच्चों? Yes. तो ये V स्क्वायर का टर्म क्या होगा, B स्क्वायर. राइट. तो मेरा कहने का बस यही मतलब था बच्चों. तो क्या होता है एट लार्ज मोलर वॉल्यूम, हायर, आई मीन हायर क्या बोलूं, आप यूं समझ लो, एट लार्ज मोलर वॉल्यूम B by V whole square B by V whole cube dot dot dot, these terms are negligible. And that is the reason I simply wrote in this way. तो यहाँ से मुझे मिल गया कि वायरियल कोफिशिएंट A एंड B, उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं वो आपके सामने मैंने रख दिया. अच्छा, कभी कभी बोलता है कि बताओ कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर जहां पे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होल्ड हो. तो एक तो टेम्परेचर ऐसा है जिसको बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं, आपको मालूम है बॉयल्स टेम्परेचर. सो दिस इज डिफाइंड एज temperature at which real gas behaves as ideal
for a reasonable variation of temperature. Of pressure. तो वो क्या है? तो देखो, आपने एक्सप्रेशन देख लिया, क्या था? You saw that Z is equal to, you saw कितना था बेटा? 1 plus 1 by V, इधर क्या था बेटा? B minus A upon RT, yes or no? Sir, yes. Plus B square by V square plus dot dot dot. अब आपको मालूम है कि ये इधर वाले टर्म तो ऑलरेडी टेंडिंग टू जीरो है एट लार्जर मोलर वॉल्यूम. सो अब अगर आपको Z इक्वल टू 1 करना है तो आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड हो जाएगा, यस और नो? बिकॉज फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1. बोलिए बच्चों. Sir, yes. तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन. फॉर बॉयल्स टेम्परेचर Z इक्वल टू 1 रख दो. ये टर्म ऑलरेडी जीरो था. 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई V B माइनस A अपॉन RT. भाई मतलब आपको Z का वैल्यू कितना रखना था? 1 ना, 1 रख दो. और इधर वाले तो सब जीरो मैंने वैसे ही ले लिया है. तो क्या समझ में आया है आपको? 1 बाई V का वैल्यू, इसका मतलब B माइनस A बाई RT का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि V तो 0 हो नहीं सकता. तो B इज इक्वल टू A अपॉन R. तो यहाँ से जो टेम्परेचर निकल के आया बेटा, A अपॉन R इंटू B. ये जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर. याद रहेगा बच्चों? बॉयल्स टेम्परेचर. सो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने आज के लेक्चर में आपको कवर कर दिया बच्चों. तो आई होप कि आपको समझ आया होगा. एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना, प्रॉब्लम सॉल्व करो. 2-3 छोटी छोटी चीजें और रह गई हैं, जैसे कि एक तो इन्वर्जन टेम्परेचर. थ्योरेटिकली अभी आप सीख लो कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है. जस्ट डबल ऑफ दिस वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ A अपॉन RB. अब ये टेम्परेचर क्या है? तो बच्चों अभी मैं, हालांकि ये टर्म आपको और अच्छे से समझ जाएगा अगर आप थोड़ा सा थर्मो का आइडिया लिए हो. होता क्या है कि जब भी गैसेस को एडियाबैटिकली फ्री एक्सपेंशन के लिए छोड़ देते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे गैस है और मैंने बाहर से कोई हीट नहीं दिया एंड आई लिफ्टेड दिस, तो ये फ्री एक्सपेंशन में जाएगा. तो अगर आप थर्मोमीटर यहाँ लगा के रखो तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन गाइस कभी कभी वो टेम्परेचर ऑटोमेटिक अप हो जाता है, कभी कभी डाउन हो जाता है. सो दिस इज दैट इन्वर्जन टेम्परेचर. अगर इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर आप एक्सपेंशन करोगे तो हीटिंग होना स्टार्ट होता है एक्सपेंशन में, और उसके नीचे करोगे बेटा तो कूलिंग होना स्टार्ट होता है. सो इसका स्टेटमेंट ये है कि व्हेन अ रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली above inversion temperature then heating occurs. ये देख रहे हो हीट हो रहा है, बट हमने बाहर से कोई हीट नहीं दिया है, तो बड़ा जबरदस्त है. ठीक है. और अगर आप इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे रखे हो टेम्परेचर और फिर इसको एक्सपैंड करने के लिए अलाउ कर रहे हो, आप बाहर से कोई भी हीट नहीं दे रहे हो, तो वो टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन होने लगता है, मतलब कूल होने लगता है वो. अभी ये क्या चीज है, ये पूरा गेम क्या है, इसके लिए आपको अट्रैक्शन, रिपल्शन और थोड़ी सी थर्मो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना पड़ेगा. तो अभी बस यहाँ पे ये है कि above Ti, if real gas is allowed to expand adiabatically freely, then heating occurs. Or below TC, below Ti, not TC beta, inversion temperature, if the real gas is allowed to expand freely, then cooling occurs. अभी ऐसा क्यों है तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा आप मैच्योर हो जाओगे तब. सो मैंने
बच्चों पूरा आज रियल गैस आपका कवर कर दिया, A to Z पॉइंट आई गेस मैंने सारा चीज बता So दिया। guys, if you want more videos like this, like, share, comment and don't forget to subscribe for the latest videos.